हाँ भाई, क्या है भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग एंड आई होप आप लोगों का टाइम अच्छा गुजर रहा होगा एंड आई होप यू आर लाइकिंग द एपिसोड्स। कोई फीडबैक हो ज़रूर दीजिएगा, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, सारे नहीं पढ़ पाता अनफॉर्चुनेटली, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू इंक्लूड एज मैनी एज आई कैन एंड टू करेक्ट माई सेल्फ एज मच एज आई कैन। तो काफ़ी लर्निंग रहती है, तो प्लीज़ आप भी ज़रा कमेंट किया करें वेर एवर यू थिंक माई ओपिनियन वॉज रॉन्ग। द आइडिया इज़ टू हेल्प पीपल आउट, नॉट टू prove myself right. Okay, बाकी एक है, you can support this channel on patreon.com/ganjiswag और patrons के साथ मीटअप वगैरह रहता ही है. तो just to inform you guys, I'm going to be in San Antonio in the end of May. तो I think by that time ये वीडियो आ चुकी होगी. If yes, तो वैसे भी Instagram पे I will mention. तो I would love to meet you guys whoever is there. वैसे तो मेरा जो वहाँ पे स्टे है, it's US consulate से related. So there will be events. So I'm yet to be given the whole agenda कि कब कब वो सारे ब्रंचेस होंगे, डिनर्स होंगे, ये विजिट वो विजिट वगैरह वगैरह. सो कोई ना कोई टाइम निकाल लेंगे, इतना कोई टेंशन नहीं है, चाय वाय पी लेंगे. ऑलराइट, विल डू दैट. चलें जी, चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ. पहला सवाल है, यू कांट हैव एवरीथिंग इन लाइफ. डियर जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम. आई एम राइटिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम. Don't know if you will ever read my email or not, but still this gives me an opportunity to put my feelings in words. Like I said पिछली एपिसोड में भी कि ठीक है, सारी तो ऑब्वियसली एड्रेस नहीं हो पाती, बट समटाइम्स इवन सिटिंग डाउन एंड राइटिंग इज़ वेरी कथार्टिक. तो ये भी ज़रूर किया कीजिए, नॉट जस्ट विद मी, आप जर्नल भी लिख सकते हैं अपना. सो राइटिंग डाउन योर फीलिंग्स इज़ वेरी थेरेप्यूटिक. सो किया करें ये. आई फॉलो योर पॉडकास्ट एंड रियली सिंक विद योर थॉट प्रोसेस एंड द एडवाइस यू गिव टू अदर्स. That is one of the reasons I'm sharing my problem with you, which I have never done with anyone, as I'm someone who would keep his feelings to himself. My background: I'm from a big city in Pakistan. I'm 40, married to my wife who's 30, with 2 kids, 7 and 5. We had a love plus arranged marriage, worked in the same office where we first met and developed an understanding immediately. Then we got married after 2 years, after a bit of struggle convincing her parents, because my parents had already passed away, so they were skeptical. अच्छा, so like अगर वो लड़की के सास ससुर जिंदा नहीं थे तो वो भी एक skeptical थे. असल में पेरेंट्स टू पेरेंट्स भी चलती है ना, ज़ाहिर है स्टार्ट तो वहीं से होती है, तो उनको ज़रा वो एक रीअश्योरेंस चाहिए होती है कि भाई लड़का कैसा है, फैमिली कैसी है, you know. When we started our journey, we lived in a rented 2-bedroom apartment and I had a bike. Even though at the time we didn't earn much, about 35,000 per month. We both planned out our family to have kids after 2 to 3 years, so that by that time we would be in a better financial condition to provide for their needs. That is an excellent decision you guys took. Good job. We enjoyed a good sex life in our first couple of years. 1 to 2 times a week was a norm. My wife got pregnant after 2 years, and since then her interest in sex started going down. I'm not among those men who would force their will on their wives. Even when they are not in a mood, I would ask once. If she says no, then I wouldn't ask again. After a few years, I started sleeping in another room, and as kids often sleep with their mother. Fast forward, we are into the 11th year of our marriage. Since COVID, we both have been working from home. She has her own business online, and I do freelancing, and both doing quite well financially, alhamdulillah. We own a house now, a nice car, and earning around 8 to 9 lakhs per month, with no debts and liabilities. In short, life is great. Alhamdulillah. That's wonderful, man. I'm so proud of you. 10 साल पहले 35,000 पे थे, बाइक पे थे, आज माशाल्लाह 8 से 9 लाख दोनों मिलके कमा रहे हैं. अपना घर है, कोई डेट नहीं है. डेट फ्री रहना एक बहुत बड़ी नेमत है, मैं आपको बता नहीं सकता. However, the sex issue remains unsolved. We now have sex once or twice max per month. It's not like she doesn't enjoy sex when we do it, but her most common excuse is that she's too tired, even though we have maids who do all the housework from cleaning to cooking. Now, and she only has to manage her business. For me, finding sex is not difficult elsewhere, but this is not the right way. I was brought up, not the way I was brought up, and I find it disgusting to have extramarital affairs. When I hear crazy stories in your podcast, I feel this could also have been my story and feel blessed that I'm not in their shoes. What do you recommend? Best wishes, regards. Thank you so much. आपने ईमेल लिखी. सो एक साहब हैं, जैसे कि आपने सुना, ही इज़ 40, हिज वाइफ इज़ 30. 10 साल का गैप है और शादी को 11 साल हो गए हैं. 2 बच्चे हैं, अच्छी ज़िंदगी है माशाल्लाह, अच्छा कमा रहे हैं, अपना घर है, सब कुछ सही है, बट सेक्स लाइफ हैज़ बिन डिटेरियोरेटिंग.
तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी लेजिट कंसर्न, और आपने ये बात अच्छी लिखी कि भाई आप इस चीज़ में सोल्यूशन चाहते हैं। हालांकि आजकल सोल्यूशन ढूंढना आसान मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। इसकी तो ऐप्स भी आती हैं एंड पीपल कैन फाइंड समवन in just few clicks without even talking to someone. So I'm glad you're not choosing that route. You're being faithful, and again, that's like the basic tenet of marriage. अब इसमें ये तो बोलना नहीं है कि नहीं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बट लाइक ये तो बेसिक है, ये तो करना है। बट आई एम हैप्पी दैट यू आर नॉट डूइंग, यू नॉट परसुइंग इट एल्सवेयर। अब रही बात ये कि अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, योर वाइफ इज़ ओनली 30 एंड शी हैज़ 2 kids, 7 and 5, यानी कि पहला बच्चा उनका हुआ था when she was 23, यानी 22 साल की उम्र में she had conceived, correct me if I'm wrong, हाँ, you're 40, she is 30, तो अब अगेन इसमें I can be wrong as well. I think उनकी मदरहुड इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग। कुछ लोगों को 18-19 में ही चाहिए होता है एंड लाइक दे लिव हैप्पीली। कुछ लोग फील करते हैं कि यार मैं कहाँ बच्चों में फंस गई, मैं थोड़ा सा और इन्जॉय कर लेती, मैं थोड़ा और ट्रैवल कर लेती, स्पेशली इन दिस डे एंड एज ऑफ इंस्टाग्राम वेयर यू सी अदर पीपल। अब देखें, ये कहना नहीं चाहिए, बट किसी हद तक ये बिल्कुल फैक्ट है। बच्चे, किड्स आर अ लॉट ऑफ वर्क। बच्चे पैदा करना बड़ा आसान है, राइट, मर्द के लिए फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली उसने तो कुछ भी नहीं करना, पंप एंड डंप, दैट्स इट। बट उनको लेके चलना बहुत बहुत कम्बरसम है, बहुत टायरिंग है। ये मुझे लगता था कि यार ज़्यादा ज़्यादा क्या ही करना है, 3 टाइम खाना खिलाना है, पैम्पर चेंज करना है, नहलाना है, बट ऐसा नहीं है। बच्चों को मैनेज करना बड़ा आसान है। यू हैव टू लाइक ऑलवेज बी अलर्ट के कहाँ है, थोड़ी देर के लिए इधर उधर ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे सो माय सन इज़ विजिटिंग, राइट, तो मुझे पूरे सारे एजेस देखने हैं, बेबी प्रूफिंग करनी है। अच्छा, एट एनी पॉइंट उसको पानी से खेलने का शौक है, तो उसने अब ये भी सीख लिया कि नलके से, हालांकि जितना टाइट बंद करो वो खोल लेता है। तो अब ये भी टेंशन है कि वो बाल्टी में पानी भर के उसके साथ खेलता है। आई गॉट हिम अ टब, मगर उसको वो नहीं, उसको उस तरह चाहिए, लाइक भरना है। ही लाइक्स द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, राइट। अब फिर मेरे जहन में ये होता है यार, बाल्टी एक हद से ज़्यादा भरी भी नहीं हो सकती, राइट, इतनी हो कि वो टॉपल हो सके, खुदा ना खास्ता इफ़ ही लीन्स इन और वो अंदर। क्योंकि ये एक वाक़या हुआ था कि बच्चा बाथरूम में था। अब ज़ाहिर है माँ ने काम वाम में मसरूफ़ थी, बच्चे तो इधर होते रहते हैं। अब हेलीकॉप्टर तो हो नहीं सकते, ड्रोन तो पीछे लगा नहीं सकते। अब वो छोटा बच्चा था, कदरे लाइक 1.5 साल का, 2 साल का, या बच्ची थी, तो वो बाल्टी में पानी था। अब वो बच्चा झुका और वो कब बच्चा टॉपल होके बाल्टी के अंदर चला गया। अब चूँकि पानी ज़्यादा भरा हुआ था, कम होता तो बाल्टी टॉपल हो जाती बच्चे के वजन से, बट वो पानी ज़्यादा था। अब वो बच्चे, ऑल इट टेक्स इज़ लाइक 30 सेकेंड्स भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, और बच्चे की डेथ हो गई। तो यार लाइक आपने एक चीज़ पैदा किया, उसको ज़िंदा रखना है, उसके आगे पीछे भागना है, उसको देखभाल करनी है। तो इट गेट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, स्पेशली फॉर मदर्स, बिकॉज फादर्स ठीक है, कुछ बहुत सपोर्टिव होते हैं और बहुत उनका इनपुट भी होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो माँ ही पीछे भाग रही होती है, आपने देखा ही होगा। तो दैट गेट्स वेरी वेरी एजिटेटिंग। एंड ऑल्सो देखें, वही वाली बात है कि वो इक्वल पे की बात होती है ना, तो उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि पेरेंटहुड मर्द को नहीं चेंज करता, औरत की पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। मैटरनल लीव हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। इट कॉस्ट अ लॉट टू वेमेन टू बेयर चिल्ड्रन। उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली उसने मैटरनल लीव लेनी है, तो शी इज़ नॉट गोना बी इन ऑफिस, परफॉर्मेंस लैक करेगी। फिर विद बीइंग अ मदर इन दैट रोल, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, नॉट इम्पॉसिबल, दुनिया भर में औरतें काम करती हैं, बट ऑब्वियसली इट बिकम्स वेरी ड्रेनिंग एंड वेरी टायरिंग। फिर वो प्रमोशंस में बहुत इश्यूज होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अप टू द टास्क इन सम केसेस, नॉट ऑल। कुछ लोग बेहतरीन मैनेज करते हैं। अगेन प्रिविलेज वाली बात है, अगर आपके घर में 2-3 फिलिपिनो मेड्स हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो वाइस प्रेसिडेंट भी बन जाती हैं ख़वातीन, राइट। बट ये चॉइसेस हर किसी के पास नहीं होती। तो फॉर वुमेन लाइक उसकी पूरी ना सिर्फ बायोलॉजी चेंज होती है, साइकोलॉजी भी चेंज होती है एंड फॉर एवर चेंज हो जाती है। तो ये आसान नहीं है, हमने तो बड़ा आसान बनाया हुआ है, पुड़क करके निकाल दिए बच्चे, मगर
women go through a lot. And then फिर postpartum depression अगर हो जाए तो फिर वो एक और बहुत बड़ी मुसीबत है. मैं इस चीज़ को जब एक ही बार एक्सपोज हुआ हूँ, व्हेन आई हैड माई सन, माई वाइफ वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. ऑन टॉप कोविड था, पीक कोविड, लॉकडाउन, घर में बंद है, कहीं आ जा नहीं सकते, छोटा घर था, और जो है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वाई शी वॉज बिहेविंग द वे शी वॉज. एंड देन आई एजुकेटेड माई सेल्फ एंड आई डिस्कस्ड विद अदर फ्रेंड्स एंड देर लाइक ओके इट मस्ट बी पोस्ट पार्टम दिस एंड दैट. तो कुछ लोग उससे जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोग लाइफ लॉन्ग उसमें रहते हैं. तो ये भी एक रियलिटी है. तो अब आपकी वाइफ सिर्फ 30 की हैं. नाउ when speaking from the standpoint of sex drive, 30 is no age to lose your interest. 30 में तो इंसान is all over the place. But मुझे ये लग रहा है कि चूंकि वो चाइल्ड बेयरिंग रोल में बहुत जल्दी ज़िंदगी में आ गई एंड नाउ शी इज़ लुकिंग अराउंड, दिस इज़ माई ओनली अजम्पशन. प्लीज़ इसको वर्ड ऑफ गॉड नहीं लीजिएगा या इसको बिल्कुल फाइनलिटी नहीं लीजिएगा. दिस इज़ माई असम्पशन considering urban life, exposure to urban life, this and that. Ke she must be looking around, looking at her friends. Some of them might be traveling, some of them. और फिर Instagram डिप्रेशन करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टूल है हमारे पास. लोगों की परफेक्ट लाइव्स आप देखते हो, फिर आप कंपेयर करते हो, यार यहाँ तो मैं बच्चे संभाल रही हूँ, ये क्या लाइफ है, दिस एंड दैट. That could be one thing. Secondly, maybe she absolutely loves motherhood. एंड दैट्स नॉट द मतलब, और शायद ये वाले केस ना हो जो मैं कह रहा हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू मल्टीपल सिनारियोज, राइट. इट कुड बी समथिंग साइकोलॉजिकल. ये आपने उनसे डिस्कस करना है. इफ़ शी इज़ नॉट कंफर्टेबल डिस्कसिंग इट विद यू, परहैप्स यू कैन सजेस्ट हर टू टेक सम कंसल्टेशन, मे बी गो टू अ सेक्सोलॉजिस्ट. मे बी उनकी बायोलॉजी में कोई इतना फ़र्क आ गया हो कि उनको शी इज़ नॉट फीलिंग एज यू सेड, शी एन्जॉयज इट व्हेन यू डू इट, बट इट्स नॉट ये उतना फ्रीक्वेंट नहीं हो रहा. तो सेक्स ड्राइव लूज़ क्यों हुई है, इसकी वजूहात मालूम करने की कोशिश करें. मे बी इट्स अ बायोलॉजिकल इशू, मे बी साइकोलॉजिकल. तो फिर आपने लेके जाना है खुद से. ठीक है, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू कि आप कंसेंट लेते हैं एंड यू डोंट फोर्स योर सेल्फ. सो वेरी वेरी गुड थिंग. और मगर ये कि है तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, एंड इट कीप्स द स्पाइस इन लाइफ अलाइव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये इंसान की ज़रूरत होती है. और एंड योर राइटफुल, इट्स अ राइटफुल डिमांड टू सीक दैट. तो इसको फिर आप कंसल्ट करवाएं, ठीक है ना. फर्स्ट टॉक टू हर, व्हाट डज शी लाइक. मे बी व्हाट यू आर डूइंग इज समथिंग हैज़ बिकम मोनोटनस. आप लोग 11 साल से मैरिड हैं, 11 साल बड़ा टाइम होता है, ठीक है ना. मेरे भी 7 साल होंगे. तो दैट प्लस 4 मोर, राइट. तो उसमें पीपल टेंड टू लूज इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ मोनोटनी. ट्राई डिफरेंट थिंग्स परहैप्स. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो मुझे भी बड़े देर से समझ आई, हालांकि समझ थी बट शर्मा शर्मी में बंदा बात नहीं करता. डिस्कस करें लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अपने आप को कम्युनिकेट करवाएं, बताएं कि भाई एंड लाइक अप्रिशिएट व्हेन यू आर इन द एक्ट. appreciate when you like something, and like if you don't like something वो भी बता दें कि like maybe not this way, perhaps we can do this way वगैरह वगैरह. Communication is the key. अब मसला ये है कि हम ज़ाहिर है जिस मसला तो खैर नहीं है, हम जिस माशरे में हैं वहाँ पे ये चीज़ें खुल के डिस्कस करने को थोड़ा सा मायूब समझ जाते हैं लोग. इवन अपने पार्टनर से भी शर्मा रहे होते हैं. आपको याद होगा बहुत शुरू में मुझे एक ईमेल आई थी जिसमें एक लड़की को सिर्फ डिवोर्स इसलिए हो गई थी बिकॉज द वे शी हैड किस्ड हर हस्बैंड ऑन द फर्स्ट नाइट इज़ लाइक ओके शी सीम्स टू बी रियली गुड एट इट. तो इस शक में ही तलाक दे दी कि ये तो पता नहीं कहाँ से होती हुई आ रही है, राइट. सम पीपल आर ऑब्जर्वेंट, सम पीपल आर फिजिकली एक्सप्रेसिव, यू नो, होते हैं भाई, सबके पास टैलेंट है. खैर, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको लेके बैठें, पूछें. या फिर ये कि मे बी शी इज़ एक्सट्रीमली ओवरवर्क्ड. अगेन आपने जो बिज़नेस वाली बात की, अज्यूमिंग शी इज़ इन एन ऑनलाइन बिजनेस, अगर तो ये रिटेल बिजनेस है जहाँ पे इनको कस्टमर डीलिंग है, अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तानी जैसा कस्टमर अल्लाह दुनिया में किसी को ना दे. बिकॉज आई नो सम पीपल वेरी अप क्लोज हु डील विद पाकिस्तानी ऑडियंस एंड स्पेशली women. ब्रो, आई एम लाइक नॉट बीइंग एंटी women. मेरी लेडीज़ लोग दोस्तों ने ही बताया है, कोई कपड़े का काम करती हैं, कोई ज्वेलरी का काम कर रही हैं, एंड लाइक women कैन बी वेरी वेरी मीन.
व्हेन देर ऑन द रिटेल साइड कि हम पैसा दे रहे हैं भाई, हमें बताओ सूट यूँ करके दिखाओ। अगर आपने तस्वीरें लगाई हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई ये सूट है, इनफैक्ट मैं आपको अपने ब्रांड की बात करता हूँ, मैं चेक नहीं करता, हमने वो रखी में सोशल मीडिया चेक करती हैं खातून, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि सर इसका मैं क्या करूँ। भाई सूट की तस्वीरें लगी हुई हैं, वीडियो कॉल पे आओ और सूट यूँ करके दिखाओ कि कैसा दिख रहा है। अरे ये क्या बात हुई भाई, यही कलर है, हमने कोई इतने फिल्टर थोड़ी लगाए, ये डिटेल सारी मेंशन है, साइज सारा मेंशन है। तो समटाइम्स यू नो कस्टमर्स कैन बी लाइक वेरी वेरी मीन। बहुत से लोग ज़ातियात पे आ जाते हैं, गालियों में आते हैं, मुझे आज चाहिए अपना। आई नो समवन हु डील्स विद हाई एंड बैग्स एंड शूज़। तो अब हाई एंड यानी कि अगर कोई खातून 6 लाख का बैग ख़रीद रही हैं तो आप समझ लें कि फिर वो एक क्लास क्या होगी और फिर उनकी आदत क्या होगी पाकिस्तानी माशरे को मद्देनज़र रखते हुए। मुझे आज ही मेरा बैग चाहिए। अरे भाई बैग निकलेगा स्पेन से, होता आएगा, नहीं मुझे आज रात को शादी में पहनना है, नहीं आया तो मुंह पे मारो तुम्हारे पैसे, पता नहीं क्या क्या। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद कस्टमर्स इन जनरल, लेट अलोन जस्ट वुमेन, इन जनरली बड़ा मुसीबत है ई कॉमर्स पाकिस्तान में। तो अगर उनका आप ये भी एड्रेस करना चाहिए कि उनका काम का प्रेशर कितना है। इज़ शी ओवरवर्क्ड, इज़ शी अंडर अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, क्योंकि ये चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं कि व्हेन यू आर नॉट राइट हेयर तो फिर लाइक यू आर नोवेयर ना, फिर आपका दिल किसी भी चीज़ का नहीं करता। तो ये भी चीज़ देखें, अगेन कम्युनिकेशन ही इसमें होगी। आपने मेंशन नहीं किया, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गाइज वेंट ऑन अ वेकेशन जहाँ पे आपको लगता है कि इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा डाउन है या फिर वो स्पाइस नहीं है, दैट्स द राइट टाइम टू टेक वेकेशन। यू नो, लेना तो खैर प्रीएम्प्टिवली चाहिए, मगर जहाँ आपको लगे कि चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, आप तो जिस शहर में रहते हैं वहाँ से तो आप मोटरवे पे चढ़ें, सीधा ले जाएं पहाड़ों पे, वहाँ तो इतना मुश्किल भी नहीं है। मसला तो कराची में होता है ना, आपको 10 बार सोचना होता है, फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो आप 4 घंटे गाड़ी किसी भी दिशा में चलाएं 1600 में आप पहुँच जाते हैं। ऊँट जा रहे होते हैं, गधे जा रहे होते हैं, सिविलाइजेशन एंड हो जाती है, मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, 10,000 मसले। बट लाइक आपको कम से कम प्रिविलेज है कि आप वो वाले प्रोविंस में जहाँ आसपास पहाड़ बड़े करीब हैं, तो वो करें। यू गाइज माशाल्लाह मेक गुड मनी, टेक अ ट्रिप अब्रॉड। इससे होता ये है कि लाइक टेक हर ऑफ वर्क, टेक ऑफ फ्रॉम योर वर्क एज वेल, एंड देन लाइक जस्ट बी इन अ जोन के आपके बच्चे ही माशाल्लाह बड़े हैं, अगर नानी मामू से वो अच्छी तरह हिले हुए उनको छोड़ के आप यू कैन टेक अ मिनी वेकेशन 4 दिन का 5 दिन का, बाकू चले जाएँ, वहाँ से तो डायरेक्ट फ़्लाइट भी है आपके यहाँ, ठीक है ना, बाकू चले जाएँ, हैव सम फन, थोड़ा सा यू नो मोनोटनी भी इंसान का ना इंटरेस्ट हर चीज़ में ख़त्म कर देती है। वही सो के उठ के उठना। और बाय द वे वर्क फ्रॉम होम जो है ना, प्लीज़ जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग 2-3 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए, अ लॉट ऑफ पीपल मिस ऑफिस, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यार उठ के इधर ही बैठ जाओ, इधर ही से यहाँ हो जाओ। तो वैसे वी हेट ट्रैवलिंग, ट्रेवर्सिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट लाइक फिर एक पॉइंट के बाद आपको याद आता है यार कि चलो एटलीस्ट मैं तैयार होकर कहीं तो जाता था, यू नो, 4 FSL से होते हुए जा रहे हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से होते हुए जा रहे हैं, एंड लाइक पार्क कर रहे हैं, ऑफिस का माहौल है, सिगरेट ब्रेक ले रहे हैं, चाय ब्रेक ले रहे हैं, नीचे डंकिन डोनट्स पे कॉफ़ी पी रहे हैं वगैरह वगैरह। पीपल एंडेड अप मिसिंग दैट लाइफ। तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड टू लीव वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मॉडल पे चले गए। तो कहीं वो इतनी मोनोटनी है कि यार सुबह उठना है और इधर ही जाके टेबल पे बैठ जाना है, तो वो भी जो है ना बोरिंग हो जाता है एक पॉइंट के बाद। एक पॉइंट के बाद देखें, अगेन अल्लाह ऐसी प्रॉब्लम सबको दे कि 8-9 लाख आ रहे होते हैं लेकिन वो चस नहीं आ रही होती। तो ये भी मसला है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर आर नॉट इनफ एवेन्यूज। सो लाइक आई सेड माई फैमिली इज़ हेयर। तो वो मैं कल हम लोग यही बात कर रहे थे, माई वाइफ एंड आई, कि यहाँ पे करने को है ही क्या। तो मैं ओके ठीक है, योर हेयर, माई सन इज़ हेयर, इसको कहाँ लेके जाऊँ मैं। कल बीच पे गए, गंदी गलीज हो रही थी बीच और बहुत ज़्यादा रश था, एंड स्पेशली इफ़ यूर नोन तो फिर आपकी प्राइवेसी भी नहीं होती। लोग आ रहे हैं तस्वीर खिंचाने, अगर मैं उनको कह रहा हूँ भाई मैं फैमिली के साथ हूँ, थोड़ा सा लेट मी एंजॉय विद माई सन, तो दूर से घोड़े के नीचे से तस्वीर खींच रहा है, कोई यूं करके खींच रहा है, नहीं अच्छा लगता है। आप किस किस का मुंह बंद कराओ, किस किस का कैमरा बंद कराओ। तो प्राइवेट बीच वाले सीन फिर वो यार इतनी प्रिविलेज नहीं है भाई अभी। खैर, तो बहुत सारे रीजंस हैं भाई यहाँ पे, देयर इज़ नथिंग टू एंजॉय। आप तो फिर चले जिस शहर में वो बंदा वॉक कर सकता है, यहाँ तो वो भी नहीं है। तो लोग पक गए हैं यहाँ पे। तो पैसा जितना भी आ रहा हो
वो पैसा खर्च कहाँ करें, ये भी एक मसला आता है। भाई कितने डाइन आउट आप कर लोगे, कितने स्टेक खा लोगे, कितना अफगानी बोटी खा लोगे। यू नीड समथिंग एल्स। सिनेमा नाम की चीज़ नहीं है, रह दे के साल में 1-2 फिल्में आती हैं, वो भी बस एवरेज ही होती हैं। कोई सिटी स्केप्स ही नहीं है यहाँ पे, कुछ दिस इज नॉट मच टू डू हेयर। तो इन जनरल अ लॉट ऑफ पीपल आर इन डिप्रेशन बिकॉज इवन दो दे आर मेकिंग गुड मनी, करें क्या उस पैसे का। अब हर बंदा मुंह उठा के दुबई नहीं जा सकता वीकेंड मनाने भाई, ठीक है ना, अब हर चीज़ महंगी हो गई है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं साहब, साहब कह रहा हूँ, साहब ही हैं आप। तो अगेन मैं आई ओनली नो हर थ्रू द ईमेल दैट यू सेंट मी, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये एड्रेस आप करें, कम्युनिकेट करें, लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात करें। इज देयर समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग हर। लोग नहीं बता पाते क्योंकि ज़ाहिर है व्हेन यूर इन एन इंटीमेट सिचुएशन, सो इट्स लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्लूइड्स कमिंग आउट ऑफ योर बॉडी, थिंग्स कैन गेट स्टिंकी एज वेल। लोग नहीं बता पाते इफ़ समवन हैज़ अ बैड ब्रेथ, इफ या कोई बॉडी ओडर है, मुश्किल हो जाता है बर्दाश्त करना, और फिर बताया भी नहीं जाता क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि अगला फिर इनसिक्योर हो जाता है। तो ये लेकिन कम्युनिकेशन इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है भाई, कि कोई ऐसी चीज़ कोई डिसलाइक हो रही हो, मे बी समथिंग, मे बी इफ़ यू नीड सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर ओवरऑल सिचुएशन, परहैप्स परफॉर्मेंस, या फिर मे बी द वे यू आर डूइंग थिंग्स, कम्युनिकेट करके ही होंगे। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये लाख दर्जे ज़्यादा बेहतर है ये डिस्कम्फर्ट देन हैविंग अ डिस्कम्फर्ट ऑफ हैविंग अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कहीं मुंह मारना। ये तो बिल्कुल नहीं करना, वो और ज़्यादा ख़राब है, ये ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन बैठें, बात करें, पूछें मसला क्या है, इज़ देयर समथिंग यू नीड, यू वांट मी टू चेंज, या क्या मुझ में कोई कमी बेशी है वो एड्रेस करनी है, या फिर इस एक्ट में मोनोटनी है, या आर यू बोर्ड इन जनरल, व्हाट कैन आई डू टू मेक योर लाइफ बेटर, कैन वी गो समवेयर, कैन वी ट्रैवल। ट्रैवलिंग से ना बड़ा फ़र्क पड़ता है, ये मैं आपको बता दूं। नई जगह होती है, एक्साइटमेंट होती है, मज़ा आता है, और फिर शेयर्ड एक्सपीरियंस जो है ना, यही शादी को आगे लेके चलती है। प्यार डिटेरियोरेट हो जाता है, सेक्स लाइफ डिटेरियोरेट हो जाती है, फिर मतलब वो वाली एंग्स्ट नहीं रहती ना जो कि आपको गर्लफ्रेंड के साथ हो के ओ यार आई नीड टू वी गोना डू दिस डू दैट, वो फिर आपके पास जब वो फिर चीज़ें गो डाउन। सो व्हाट रियली कीप्स द मैजिक अलाइव इज़ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एंड शेयर्ड गोल्स। क्योंकि फिर आप टीम वर्क के तौर पे जब कुछ करते हो ना, व्हेन यू लुक एट योर चिल्ड्रन व्हाट डू यू फील, यार ये हमारी क्रिएशन है, ये हमने बनाया है, बनाने वाला अल्लाह है बट हमने फैसिलिटेट किया है, राइट। तो खुशी होती है, फ़ख्र होता है। तो इसी तरह आपके शेयर्ड एक्सपीरियंस हो, आपने कोई साथ में बिज़नेस किया हो, या आपने कोई साथ में जाकर ट्रैवल किया हो, कोई चीज़ डिस्कवर की हो, या मिल के खाना बनाया हो, पीपल इन्जॉय। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ही आपको आगे लेके जाते हैं। सो डू अ लॉट ऑफ दैट जितना कर सकते हैं। बाकी आई होप योर सिचुएशन गेट्स बेटर। परेशान नहीं होइएगा। अगेन जो जितने पॉसिबल सिनारियोज मैंने डिस्कस किए हैं, ज़रूरी नहीं है ये सारे ही फाइनल वर्ड हो, क्या पता इससे हट के कोई रीज़न हो, राइट। वो पता तभी चलेगा जब हम उनसे बात करेंगे। तो मेरे जहन में ये कुछ चीज़ें आई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो ख्याल रखिएगा एंड sit down with her and discuss. Okay, chale, good luck. All right, ji, next email says unmarried elder daughter as breadwinner. Assalamualaikum Junaid bhai, I hope I'm following your Ask Ganji swag for many years and appreciate what you are doing for people free of cost, that is listening to them and giving them good advice. I hope it's good. I just try my best. Keep it up. I'm finally writing this email to you after years of tawakkul on Allah. Now I'm freaking out and getting into depression. It will be a long email, so I apologize in advance. Don't worry about it. Life has been good, alhamdulillah. अगर बाकी उन सब से कंपेयर किया जाए जो डेली की रोटी कमाते हैं एंड उनको फ्यूचर के रिस्क का नहीं पता होता। आई बिलोंग टू एन अपर मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली फ्रॉम 3 generations of doctors, engineers and lawyers. My family is open-minded towards girls' education and their marriage, even very supportive of love marriages, giving every woman in our family all rights that we deserve and granted by Deen. I'm 32, an expert in my field with a small startup and a firstborn. My father struggled a lot.
You're the firstborn. Okay. My father struggled a lot with private jobs all his life, but as a firstborn, I remember he gave me, my sister, and my two brothers every luxury as kids and teens. My mother was a housewife but started an in house boutique business to support my father. My parents were giving us luxurious lives and sacrificing their needs. The sweetest couple and loving parents. My siblings don't remember anything while enjoying silver spoons, but I do, and it made me believe that my father had a son as firstborn, तो वो उनकी help कर रहा होता है. Okay. I took it very seriously and did my MBA marketing with 3.8 GPA and aimed to work hard to create an empire for my parents. I was 24 when my whole family moved to a big city. Okay, मैं शहर का नाम नहीं ले रहा. Everything was going well when my father lost his private job after a year. I took up the burden after we ran out of savings and started working as a freelancer part-time with a day job as well. Contributed to fees for my brother's engineering degree. Took the decision of cutting out my expenses and travel through local business so that I can save more for home. Contributed to rent, groceries, etc. Managed the fees of my other siblings as well. Finally, my father got a job after 2 years in another city. We were somehow stable. I still continued on freelancing projects, built a team, and with a respectable day job at an IT firm. Still contributing to the family at that time too, because it was not cheap to live in a big city with 3 siblings studying in universities. Another dip into our lives was when my father got a severe asthma attack while he was at his job. Got a heart attack, but alhamdulillah recovered. My mother decided to live with him in another city because we children were mature enough to live alone, and I was there. So no problem was there कि कौन घर हैंडल करेगा. फादर का जॉब करना भी ज़रूरी था एंड वो अकेले रह नहीं सकते थे वहाँ ड्यू टू हिज हेल्थ कंडीशंस. ही वॉज ऑन अ बिगर पोस्ट देयर. Every facility was available for my mother as well. I was 28 when my father and mother traveled back to us for bi-weekly visits. A major life-threatening car accident happened on the motorway. My mother suffered major injuries. मैं आज भी याद करती हूँ तो I get very emotional. My siblings were still बच्चे and we had no relatives here to support. I was the one running into hospitals, reaching out to colleagues for references कि जल्दी अम्मा का ऑपरेशन हो जाए because काफ़ी इंजरीज थी. It was a life-changing and scary part of our lives, and I must say कि हम सब बच्चे उन्हीं 4 months में बड़े हुए when our mother was fighting for her life. Allah Pak saved her and I couldn't be more thankful. That event gave me the power to go and face the hardships in my life. Well, after the accident, I asked my father to just leave the job and stay with us. I said to him कि आपकी हेल्थ भी इजाज़त नहीं देती और अम्मा को भी रिकवर करना है. मैं कर लूँगी जॉब, don't worry. I'm so glad that both my parents are here with me now, and my mother is still recovering after major hip and arm surgery. Luckily, my sister and brother got the job, started contributing as well. It's been 4 years now that we have grown and stable, and my younger sister got married last year, alhamdulillah, and she's very happy. I also took this decision and almost fought for it. दैट छोटी बहन की शादी पहले कर दें एज शी वॉज 26, उसकी एज ना निकल जाए, एंड बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था तब. ऑल्सो आई वॉज द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द होम एंड ब्रदर्स सैलरी वॉज इन अर्ली इंटरनेट स्टेज. मुझे समझ नहीं आया. नाउ बहन खुश है, भाई इंजीनियर है एंड अर्निंग अ लॉट. Youngest brother has started earning too. Amma Abba is healthy and feels like my work is done here. But I am the rotten fruit now in this stupid society as I am 32. And अब मेरे रिश्ते नहीं आएंगे according to aunties here. आपने पहले अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं की? No one cares about the hardships that they just want to tease my parents. My parents are very worried for me. But they both are so भोले कि उनको समझ नहीं आ रही how to find a good रिश्ता for me.
Now the problems are, I'm a full-time startup owner having a digital agency and overseas clients, which limits my social circle, so किसी से मिलना जुलना नहीं होता. I was modest throughout my office life that I didn't get into relationships ever. From uni life to now, I was so invested in my family कि वक्त भी गुजर गया पता नहीं चला. Third, I'm a Shia Muslim. That's why whoever approached me in the office with a proposal backed out after knowing my fiqh, even though we have a mixed community in our family and we are not those Qatar Shias. Number 4, I'm a strong believer of arranged marriage so I'm not aware of the dating game. Also, whoever approached me for a fling only, I kicked him away. Number 5, my siblings are moving on in their lives. My friends are all married with kids. I have my parents and now I'm very attached to them, fearing day and night losing them and being all alone. Number 6, I have very gifted features from Baloch genes, but now I am aging and losing my beauty. I'm very accepting of it, but people are extremely judgmental in our society and looking for younger girls for their sons. Still, I kept my calm throughout the years. I have a very strong tawakkul on Allah that He will plan the best for me. But now I'm losing it, Junaid bhai. मेरे पेरेंट्स बहुत नरम दिल के हैं, उनको सामने तो मुझे स्ट्रॉन्ग ही रहना पड़ता है. सो आई कैन नॉट इवन शेयर विद देम ताकि वो मज़ीद परेशान ना हो. I started having suicidal thoughts recently, which I fight every time because of being educated about depression and also khaufe khuda. I have no clue what to do at this stage of my life. I achieved a lot, overcame hardships, happy for my family, but I am lonely and I need a partner. Please help how to. Thank you so much for being very open-minded and open-hearted and sharing your experience with us. अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ. इस तरह की जैसे ईमेल्स आती हैं ना, तो again, this is my responsibility to keep, first of all, to keep the identities hidden, which is why आज तक किसी ने आके नहीं बोला कि आपने मेरी स्टोरी की और ये हुआ वो हुआ. इस चीज़ का मैं काफ़ी ख्याल रखता हूँ. पहले मैं शहर भी बोल दिया करता था, मैं शहर भी नहीं बोलता, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन अब जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं चैनल, लोग देखते हैं, तो लोग इट्स वेरी लाइकली कि कुछ लोग पहचान जाए. बहुत से लोग ये ईमेल करते हैं कि ये पढ़िएगा नहीं क्योंकि माई हस्बैंड ऑल्सो वॉचेज योर चैनल या माई वाइफ ऑल्सो वॉचेज योर चैनल, यही वाला, तो उसमें ना पढ़िएगा, वैसे जवाब दे दें. अगेन, सो एक तो आइडेंटिटी का ख्याल रखना अव्वलीन जिम्मेदारी. दूसरा, मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता किसी चीज़ की. अब जैसे ये आपकी ईमेल है ना, इस तरह पहले भी मुझे ईमेल्स आई हैं. एक साहब की आई थी, आपको याद होगा, जो थे कि मुझे बच्चे भी नहीं चाहिए और मैं खुश हूँ, बाहर रहते थे वगैरह वगैरह. तो दिस लेडी रीच्ड आउट टू मी. शी इज़ लाइक कि मैं भी उसी थॉट प्रोसेस की हूँ और मुझे भी बच्चे नहीं चाहिए. इट वुड बी काइंड इफ़ यू कुड कनेक्ट मी टू दैट गाय. अब यहाँ पे मसला आता है. मसला ये है, अब जैसे आपकी ईमेल है ना, तो माशाल्लाह you're very successful in your domain. आपकी अपनी डिजिटल एजेंसी है एंड लाइक यूर एजुकेटेड और अपना कमाती हैं, तो बहुत से लोगों की जो है उसमें आप बिल्कुल बेफिट हो रही होंगी. और फिर कुछ लोग डेफिनेटली रीच आउट ज़रूर करेंगे कि आप हमारा राब्ता करा दें, क्योंकि मुझे भी इसी तरह की खातून चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जिसका अपना काम हो और वो प्रोफेशनल हो वगैरह वगैरह. मुझे सफाइयों के लिए नहीं चाहिए या बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं चाहिए. आई नीड समवन हु आई कैन ग्रो अप विद प्रोफेशनली वगैरह वगैरह. अब इसमें मसला आता है. मसला ये आता है कि आई डोंट नो दोज पीपल, और मैं आपका कनेक्शन करा दूं और आप ये सोच के यार जुनैद भाई ने किया है तो एक बायसनेस ना आ जाए और शायद अच्छा ही होगा, और फिर अगला आपको कोई खुदा ना खास्ता धोखा दे दे या आपसे कोई पैसे ले ले या फिर आपसे शादी कर ले और फिर बाद में छोड़ दे. जैसे कि ओवरसीज़ वाले बहुत आते हैं, तो बहुत से लोग इस ताक में बैठे होते हैं कि किस तरह यहाँ से निकलें. तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये कनेक्शन क्रिएट करना, क्योंकि यार ज़िंदगी और मौत ही समझें आप. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल ही शादी होती है, राइट. इट कैन ईदर मेक यू और इट कैन ब्रेक यू. देयर इज़ नो इन बिटवीन, देयर इज़ नो ग्रे एरियाज. या तो ब्लैक है या फिर वाइट है, बीच का कुछ भी नहीं है. तो
तो ये बहुत रिस्की होता है मेरे लिए। तो मुझे या तो कभी कभी अपोलोजाइज़ करना पड़ता है या फिर मुझे कभी कभी इग्नोर करना पड़ता है कि यार मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता ना। मैं आपको मैं इतना ही जानता हूँ जितनी आपकी ईमेल है, राइट। सिमिलरली जो दूसरा आता है या आती है किसी भी उसके लिए, तो मैं भी उनको उतना ही जानता हूँ जितने वो हैं, क्योंकि मेरे लिए आप सब अनोनिमस ही हैं, राइट। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एज मच एज आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल आउट, अगेन मैं आपके सवाल पे आता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे याद आया, मैं जब दुबई में था, सो आई वॉज लाइक यू नो बिकॉज ऑफ माई वर्क आई वुड बिफ्रेंड अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत से लोग मिलते थे, काम के लोग भी होते थे, लड़के लड़कियाँ। तो लड़कियों में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी थी, ज़्यादातर वो थी जो वहाँ काम कर रही थी और वो सब सिंगल थी। मसला क्या था, अच्छे रिश्ते। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी थी जिनकी फैमिली वहाँ रहती थी, और जैसे मेरी एक दोस्त है वो आज भी सिंगल है और मैं उसको 8-9 साल से जानता हूँ, वो अच्छी प्रोफेशनल है। अब मसला क्या आता है यार, बाहर मुल्कों में वैसी कम्युनिटी छोटी होती है। फिर अगर आप मेमन है तो मेमन और कम है, अगर आप शिया हैं तो शिया और कम है, अगर आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन और कम है। यू गेट इट, क्योंकि हमें बॉक्स होना होता है, तो ये भी बड़े मसले होते हैं, तो फिर वो मिलते नहीं हैं। तो मैंने खुद प्लान किया था, और मैं आई थिंक पिछली एक एपिसोड में भी ये बात कही है कि हम इस तरह के इवेंट कराते हैं जहाँ पे मैच मेकिंग इवेंट्स। फॉर एग्जांपल हम अच्छे प्रोफाइल लें, उनको थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते हैं ऑनलाइन हम फॉर्म वॉर्म भरवाएं, देखें हाँ भाई फैमिली डिसेंट लग रही है। अगेन गारंटी तो आप किसी की भी ले सकते हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग अब्यूजिव निकलते हैं। कितने आपने सेलिब्रिटीज़ की लाइफ देखी है, मतलब ऑन दी अदर हैंड वो क्या होते हैं, बट तो गारंटी बंदा किसकी लिए। तो मैं ये चाह रहा था एक मैच मेकिंग इवेंट हो और वहाँ पे आएँ लड़के लड़कियाँ आएँ, अपने फैमिलीज़ के साथ आएँ। ये नहीं कि जी डेटिंग के चक्कर में आ गए सारे लौंडे आ गए, राइट। तो फैमिलीज़ के साथ आएँ, पीपल हु आर सीरियस एंड हु वांट टू सेटल डाउन, सो दैट आई कैन लाइक यू नो। और नेक काम है यार, दुआएं मिलेंगी भाई। आप हलाल रिश्ते में लोगों को जोड़ रहे हैं तो ज़ाहिर उसका सवाब भी मिलेगा, बरकत भी होगी, या दुआएं भी मिलेंगी लोगों की कि अगर कोई सेटल हो जाए वगैरह वगैरह। मगर उसमें हमें टेंशन यही आई, तो दिस फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई, हम यही कश्मकश में रहे कि यार हम कर तो दें, मसला कुछ भी नहीं है। आपने एक बॉल रूम लेना है एक होटल का, दुबई में, अबू धाबी में, अलैन में, कहीं पे भी, जहाँ भी आप कर रहे हैं। सोशल मीडिया मेरा अवेलेबल है, एक वीडियो बना के डालनी थी कि भाई ये हो रहा है, जिनको रिश्ते दरकार हैं यहाँ आ जाएँ, यहाँ पे फैमिलीज आएंगी, आके आपस में बात कर लें, जो समझ है देख लें। तो एक छत के नीचे जहाँ आप 10 जगह जाके समोसे पेटिस खाते हैं, तो एक ही जगह समोसी पेटिस हाई टी भी हो गई, और आप एक की जगह 40 कैंडिडेट से मिल लिया। आपने सतही तौर पे मिल लिया, जो समझ आए 40 में से लेट से 11 समझ आए, 11 आपने मार्क कर लिया। अब वो समोसे जलेबी उनके घर होगी, तो आपकी ना वो हो जाती, एक स्टेज कम हो जाती। तो आपको जो इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब हमारे दोस्त हैं वो हर सैटरडे को वाइट शर्ट में आते थे जब तक हम बाहर बैठ के चाय पीते थे, हर सैटरडे वाइट शर्ट में। कहाँ से जी, लड़की देख कर आ रहे हैं। पूरे कराची की लड़कियाँ ख़त्म कर ली। अब वो कह रहे अम्मा निकाल लेती हैं, क्या करें, जाना पड़ता है। तो वो उनको मिल ही नहीं रही कोई। तो एक दिन बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगेगा, भाई अब लड़कियां ख़त्म हो गई हैं, अब 5 साल बाद आइएगा, अभी जो स्कूल में है, जब वो ग्रेजुएट हो जाएं तो वो एक नई लौट आएगी, क्योंकि वो इतने सालों से देख ही रहे। तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, और एक दिन में आप एक ही लड़की देख सकते हैं, मैक्स टू मैक्स दोस्त देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं देख सकते, राइट। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको एक ही छत के नीचे 40 कैंडिडेट मिल गए। ये चीज़ मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ। अब तो माशाल्लाह ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 की, उस वक्त तो मैं कितने, मेरे 15-20 हज़ार फॉलोअर थे, तो माशाल्लाह 30-35 लाख फॉलोअर हैं। आज मैं वीडियो बनाऊंगा, हाँ इसमें एक है, रिश्ते वाली खाला बन गए हो, ये कमेंट आएंगे। अच्छा, साथ में क्या 2 जोड़े और मिठाई का डब्बा लोगे, या वो यार वो मैच मेकिंग वाला आंटी का नाम क्या है, वो जो नेटफ्लिक्स का शो है, वो बन गए हो, ये है वो है, नोट छापोगे। तो खैर वो ताने तो सुन लेंगे यार, खल्ली वल्ली लोगों के तानों से मुझे कुछ नहीं। बुलेट प्रूफ बेगैरत, हर काम करूँगा ज़िंदगी में। मगर यहाँ पे मैं यहाँ आके फंसता हूँ कि यार भाई कल कला को कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही अब्यूसिव, कोई ज़ाहिर जाफ़र निकल आए, समझ रहे हैं आप, या कोई बहुत ही अजीब सा केस हो जाए, कोई जेवर लेके भाग जाए, चाहे लड़का चाहे लड़की। स्कैमर तो हर जेंडर में माशाल्लाह पाए जाते हैं, और यहाँ पे शादी के कितने स्कैम होते हैं। तो भाई कल को फिर आ जाएगी पोस्ट, इन्होंने करवाई थी शादी। तो यार मैं ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं नेक नियति से काम कर रहा हूँ, कल आँखों, अब गारंटी तो भाई किसी चीज़ की नहीं है यार। इंसान अपनी औलाद की गारंटी नहीं ले सकता, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये मैं बहुत अरसे से चाह रहा हूँ कि यार ये एक चीज़ हो, अच्छा काम है अगर,
और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। और ये पाकिस्तान में चाहे आप गरीब हो, आपका जिस क्लास से ताल्लुक हो, ये हर क्लास का यूनानिमस मसला है। फॉर एग्जांपल एक क्लास का मसला है गैस नहीं आ रही, बड़ी क्लास वाले ने सिलेंडर लगा लिए। एक क्लास का मसला है जी बिजली रोज़ाना 8 घंटे आती है, एक क्लास ने जी 5 kV का जनरेटर लगा लिया, AC नहीं बंद होता। यू गेट इट? तो कुछ क्लासेस मसले, ये एक ऐसा मसला है जो हर क्लास में पाया जाता है और पूरे पाकिस्तान का ये मसला है। तो मैं चाहता हूँ अगर यार मेरे तवज्जुह से कोई सोल्यूशन हो सके, मगर यार फिर आपको पता है कितने स्कैमर्स इस आड़ में बैठे होंगे कि हाँ हमें मासूम फैमिलीज़ मिलें ताकि हम उनको बेवकूफ़ बनाएं, तो मैं यहाँ आके रुक जाता हूँ। देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई वांट टू डू। अब फॉर एग्जांपल जो उस दिन बच्चे ने ईमेल की थी 2 एपिसोड पहले, जिसको 11,000 यूरो चाहिए थे, मेरे लिए कोई मसला नहीं है कि मैं, इतने तो दोस्त हैं मेरे भाई, 500-500 यूरो दे दे, मेरे नाम पे दे दे, ठीक है। 500-500 करके मुझे कितने चाहिए होते? 22 लोग चाहिए होते, राइट? तो 22 दोस्त तो हैं मेरे पास जो 500-500 दे देंगे, पूछेंगे भी नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी शक्ल पे दो, अगले साल मैं वापस करवा दूंगा, मगर यार मैं गारंटी नहीं ले सकता ना। ऑल्सो कोई मसला नहीं, इतने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और एंड इवन NRIs देखते हैं और दिल खोल के वो सुपर चैट और पेट्रियन सब कर रहे होते हैं, चाहे वो इंडियन हो। वो कहते हैं यार आपकी बातों से इंडियन बच्चों का भी फ़ायदा हो रहा है, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है भाई, एक स्कॉलरशिप का हम एक सिम्पोजियम बना लें कुछ, कि जहाँ पे पूल इन करें, पैसा डालें और फिर हम कैंडिडेट्स उठाएं, उनको थरली एग्जामिन करें। लेकिन फिर वही मसला है ना यार, हक हलाल की कमाई है लोगों की, किस तरह पेट काट के कैलगरी की सर्दियों में लोग रहते हैं, सुबह उठ के पहले बर्फ़ साफ़ करते हैं फिर काम पे जाते हैं, उनका पैसा मैं लगाऊँ और कोई लेके भाग जाए तो यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो बहुत से लोग बहुत सारा अच्छा काम करना चाह रहे होते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे होते यार कल को मेरे ही गले पड़ जाएगा ये। यू गेट इट? मेरे लिए कोई मसला नहीं साल में 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का, कोई मसला नहीं है। इतने फॉलोअर्स हैं यार माशाल्लाह, इतने पैसे वाले हैं। वो शेखानी दोस्त है यार मेरा, उसी को बोलूँगा 5 बच्चे तो वो कर देगा, पैसे भी नहीं मांगेगा वापस। मगर वही वाली बात है ना, गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि फ्रॉड इतना है यहाँ पे, तो कोई अच्छा काम ही नहीं कर सकता। और मैं बहुत सारे अच्छे काम रोक रहा होता हूँ कि यार कल को मेरे गले पड़ेगा। सो अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन बहन, कि ये सुन के बहुत सारे आएंगे भी, मगर वही वाली बात है, मैं किसकी गारंटी लूँ, बड़ा मसला है। So again, you're not the only one on this boat. I know so many eldest daughters और कमाने वाली daughters, ठीक है। यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि आपके पेरेंट्स आपको यूज़ नहीं कर रहे, राइट? मैं ऐसी भी सिचुएशंस जानता हूँ जहाँ पे जानबूझ के रिश्ते सबोटाज किए जा रहे हैं कि ये चलेगी तो घर कौन चलाएगा, क्योंकि पेरेंट्स अब रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं। अगेन रिटायरमेंट का लोग अपना ख्याल नहीं रखते। एक और वीडियो मैंने बनाना चाह रहा हूँ उस पर, वो ये है कि आज से 60 साल पहले एवरेज लाइफ स्पैन इंसान का 52 ईयर्स था ग्लोबली। फिर मेडिकल साइंसेस की तरक्की के बाद अब वो ग्लोबली 75 पे चली गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, करेक्ट मी, प्लस माइनस होगा, राइट? और इंसान रिटायर हो जाता है लेट से 55 पे 60 पे, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तानी भी हैं और आप 55 पे रिटायर हो रहे हैं, तो आपने अगले अपने 20 साल का भी रखना है भाई, ये औलादों पे नहीं रहना। तो अभी से कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ करें ताकि आपको आपकी रिलायंस कम से कम हो। फिर आप ये बच्चे ना पैदा करते फिरें कि यार बड़ा होकर हमें पालेगा कौन। तो अपने आप को पलवाने के लिए आप 4 ले आते हैं दुनिया में, फिर वो और 4 ले आते हैं, और ये आबादी का बम खा गया है हमें ये पॉपुलेशन। क्योंकि आप मौलवी साहब के कहने पे कर लेते हो पैदा, मौलवी साहब कहते हैं कि बच्चा अपना रिस्क खुद लाएगा। मौलवी साहब का रिस्क सामने डब्बा रखा होता है, लोग डाल के जा रहे होते हैं, तो वो तो आपको यही बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए चूँकि आसान है तो वो समझते सबके लिए आसान है। सबके लिए आसान नहीं है भाई, उनका तो कर लेते हैं लोग। किसी ने जूते गिफ्ट कर दिए, कपड़े कहीं से आ गए, ये आ गए, वो आ गए। अगेन नो फॉल्ट ऑफ देम, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अच्छे तनख्वाह पे जो है ना मस्जिद का हिसाब किताब हो, और स्टेट ओन होना चाहिए। यहाँ तो स्टेट ने तो अपनी एम्बुलेंस नहीं चलाई आज तक, एदी छिपा पे चल रहा है पूरा शहर, गेट इट? स्टेट ने बड़े आराम से हाथ उठा लिए, भाई लोग आपस में खुद ही कर लें। तो ये ऑन योर ओन वाला मुल्क बनाया हुआ है हमने। खैर, तो ये फिर बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स जानबूझ के सबोटाज करते हैं लड़कियों को, जो है ना
इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि भाई वो कमाती रहे, वो मनी मेकिंग मशीन है। करते हैं, माएँ भी करती हैं, वालिद भी करते हैं, और ये है, ऐसी बहुत सिचुएशंस हैं। एटलीस्ट इन योर केस दैट इज़ नॉट द थिंग कि आपके पेरेंट्स ने आपको सबोटाज नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप जिस रोल में रहीं, जिस तरह रहीं, आपकी प्रायोरिटी नहीं थी। जैसा कि आपने कहा कि आपका एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड है, तो यू वर नेवर इन द डेटिंग गेम वगैरह वगैरह। अब ये जो आपको इनसिक्योरिटी आ रही है कि मेरे फीचर्स कम हो रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है, देखिए घबराएं नहीं। अगेन आप माशाल्लाह जो हैं आपने तवक्कल वाली बात जगह जगह लिखी, ठीक है ना। आपने वी डिज़र्व एंड व्हाट वी गेट वी इट्स ग्रांटेड बाय दीन, तो आपने ज़ाहिर है योर अलाइनमेंट इज़ राइट। तो अल्लाह पे तवक्ल रखें, इन चीज़ों का ख्याल ना रखें। देखें शक्ल पे जो शक्ल पे आते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा देर ठहरते भी नहीं हैं, क्योंकि वो फिर देखिए ऐश्वर्या राय हमारे लिए ऐश्वर्या राय है, अभिषेक के लिए वो बीवी है। आप समझ रहे मेरी बात ये कहने का मकसद ये है कि वो वैल्यू सस्टेन नहीं कर पाते आपके लुक्स अच्छे हों, ठीक है, अट्रैक्शन के अपने पॉइंट्स होते हैं। एक हैंडसम आदमी कोई बात करे तो और अच्छा लगता है सुनने को। जो बात मैं कह रहा हूँ ये फवाद खान करे, आपको और मज़ा आएगा सुनने में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसके अपने पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, वो सस्टेनेबल नहीं होते। तो जिसने इंशाल्लाह आपके दिल से मोहब्बत करनी है और अपने दिल से करनी है, तो वो ये चीज़ें नहीं देखेगा। और एज एक देखें, ज़िंदगी का एक निज़ाम है, एज होती है। अब देखें मुझे बड़े याद आते हैं अपने बाल, लेकिन मैं क्या करूं। अब ये एक ज़िंदगी का एक फ़िनोमेना है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें बस ये कि आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम अपने स्वैग के साथ ज़िंदा हैं। याद बहुत आते हैं बाल, बिल्कुल आते हैं यार। वो एक जो फीलिंग होती है ना जब आपने कंडीशनर यूज़ किया हो, तो वो जो सॉफ्टनेस वो मैं बहुत मिस करता हूँ। और वो आप जितना ट्रांसप्लांट करा लो उसमें वो बात ही नहीं। जो बात नेचुरल है वो नेचुरल है। खैर, तो आप इन चीज़ों पे बिल्कुल वो ना करें कि मेरे लुक्स भी जा रहे हैं और ये भी हो रहा है। कोई इमरजेंसी नहीं है। अ लॉट ऑफ देखो, हर बंदे को उसके हिस्से की खुशी और गम मिलेगा और उसको वक्त के साथ मिलेगा। अब आपको अगर ये किताबी बातें लगें तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये हकीकत है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुतय्यन किया हुआ है। तो इंसान कोशिश ही कर सकता है। तो आप कोशिश ज़रूर करें। अगेन अब उसमें जैसे आपने कहा कि आप इतनी सोशल नहीं है, आपका काम आपको अलाउ नहीं करता इतना, तो अब इसमें कि आपको थोड़ा बहुत अपने आप को सोशल ज़रूर रखना होगा। ज़ाहिर है आप अगर आपकी दौड़ वही मस्जिद तक रहेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर से काम से घर, तो इन सिचुएशंस में जो है ना आप यू आर नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान अपने आप को एक शो पीस बना के आगे प्रेजेंट करे, बट एटलीस्ट बी स्पॉटेड। तो आप इंसान अपने आप को उन सिचुएशन में ज़रूर रखें जहाँ पे एक हलाल रिश्ते के लिए ही सही। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग शादियों में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते जी? ख़ास तौर पे जो सिंगल होते हैं, या मुझे डिप्रेशन होता है। और बहुत से लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ज़ाहिर है वो देखते हैं यार ये लड़की 24 साल की है, मैं 36 की होगी, मेरी शादी नहीं हुई। बहुत से लोग अवॉइड करते हैं। मगर बहुत से लोग इसलिए भी जाते हैं कि यार वो एक अगेन वही वाली बात है, एक ही छत के नीचे 500 लोग मुझे स्पॉट कर लेंगे, क्या पता समबडी एंड्स अप लाइकिंग मी। तो ये दावतें ओकेजन्स वगैरह पे अगर आप नहीं जाती तो ज़रूर जाया करें। और ये ताने वाने वाले जो है ना, अगेन देखें भाई आप माशाल्लाह सक्सेसफुल खातून हैं, आपने फ्रॉम स्क्रैच विदाउट एनी प्रिविलेज, आपने अपनी प्रिविलेज खुद क्रिएट किया, आपने अपनी इकोनॉमी खुद क्रिएट की, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। अब ये घिसी बेटी आंटियाँ जो होती हैं जिन्होंने ज़िंदगी में खुद कुछ अचीव नहीं किया होता, माँ ने बाप ने बोला जी यहाँ शादी करनी है, जाके चले गए, बच्चे पैदा कर लिए, ज़िंदगी में कोई उनकी अचीवमेंट नहीं है, क्यों पैदा हुए क्यों मरे कुछ पता नहीं है, उनकी बातें फील करना जो है ना, तो फिर आप अपने आप को डाउनग्रेड करिए। तो आपने इन तानों को फील नहीं करना और अपने पेरेंट्स को भी ज़रा एजुकेट करना है कि भाई इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान ना दें। सबकी अपनी अपनी किस्मत है भाई। आपकी बहन की किस्मत थी, उसकी शादी जल्दी होगी, आपकी शादी भी अपने वक्त के हिसाब से हो जाएगी, टेंशन ना लें। बाकी ये जो आपने बात कही कि आपको हर वक्त धड़का लगा रहता है पेरेंट्स का, देखें ये थॉट तो इंसान के जहन में कभी भी नहीं आती, मगर ये हकीकत तो है। हम जिस दुनिया में रहते हैं और जो ज़िंदगी है ये फाइनाइट है, और ये ज़िंदगी का फ़ानी होना ही इसमें खूबसूरती भरता है। वो जो आप अपने मोमेंट्स बनाते रहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, वो यही सोच के बनाते हैं कि यार ये हमेशा के लिए नहीं है, राइट।
तो सेवर करें जितना टाइम है, अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन अगेन लंबी होती है वो ताहयात तो नहीं होती। तो इस डर में रह के ना आप जो प्रेजेंट है आप वो भी ख़राब कर रही हैं, तो आप ये ना कीजिए। जो होगा जब होगा वो बिल्कुल देखी जाएगी, वो इंशाल्लाह इंसान तब प्रोसेस कर लेगा। अभी तो जिंदा है ना वो, तो अभी तो उनके साथ अप्रिशिएट करें, चेरिश करें वो टाइम। वो जब चले जाएंगे अल्लाह आपको तब भी सब्र दे देगा। इंसान की खुसूसियत यही है कि इंसान जो है अपना अच्छा वक्त कभी नहीं भूलता, और बुरा वक्त अल्लाह ताला दिल में ऐसा एक करता है कि वो भूल जाता है। मैंने पर्सनली 3 जो हैं डेथ्स मेरी फैमिली में जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट किया, वो तीनों मामू, नानी और मामू की ही बेटी, राइट। आई लॉस्ट माई सेल्फ जिसको आप कह सकें। मगर मैं आपको बताऊं ये बात, और बहुत से लोग इस बात से शायद अग्री करें या फिर उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो। जब आप दफन करके पलटते हो ना, जब आप दफन कर रहे होते हो ना, वो सबसे वीकेस्ट मोमेंट होता है इंसान का। क्योंकि यार आपके सामने एक बंदा जा रहा होता है, फिर आप उस पर मिट्टी डालते हो, वो एक बहुत दुखी फीलिंग होती है। मगर मैंने ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एक्सपीरियंस किया। द मोमेंट यू टर्न बैक, और जब आप बाहर के लिए निकलते हो, आप बहुत सुकून में आ जाते हो। क्योंकि आप एक्सेप्ट कर चुके होते हो कि यार ये अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह को वापस कर दी, सुपुर्द खाक, सुपुर्द कर दिया ना आपने, हैंड ओवर कर दिया। अल्लाह की चीज़ थी, आपने अल्लाह को वापस कर दिया। अल्लाह ताला ये इंसान है, आपका डिपॉजिट कहाँ कराना है जी, ये सेफ़ है, ज़मीन में सेफ़ बनाए, इसमें मेरा डिपॉजिट कर दें। आपने जो अमानत थी अल्लाह की, डिपॉजिट कर दी, आ गए। अब आप वो जाने, अल्लाह जाने, ठीक है ना, आप दुआ ही कर सकते हैं। तो इंसान का दिल फ़ौरन सही हो जाता है, और बाद में वक्तन फ़वक्तन आपको चीज़ें याद आती हैं। जैसे लाइक मैं मामू के घर गया जब उनकी डेथ के बाद पहली बार 6-8 महीने बाद, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसी सीढ़ियों पे चढ़ा, याद आया कि यार इन्हीं सीढ़ियों पे मैं उनके साथ जाता था, इसी छत पे हम खड़े बातें करते थे, इसी यहाँ मैं बैठता था तो वो यूं करके आते थे और पूछते थे चाय लाऊं, फिर वो नगेट्स बना के लाते थे। आपको याद भी होगा जितने लोग स्टोरीज़ पे देखते थे। आसान नहीं है प्रोसेस करना, फिर आप डिफरेंट वक्त में याद आती हैं चीज़ें, बट ओवरऑल जो है ना इंसान सुकून में आ जाता है। ये वो कहते हैं ना, विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो जब वो ब्रिज आएगा तो तब की तब देखी जाएगी। तो अभी अपनी लाइफ ये सोच के ख़राब ना करें, अपना मोमेंट्स ख़राब ना करें कि ये आज है कल नहीं है तो क्या होगा। जब ये वो नहीं होंगे तो अल्लाह ने उसका भी इंतज़ाम किया हुआ। तो वो ज़िंदगी ऐसी चलती हुई आ रही है और लाखों सालों से चलती हुई आ रही है, तो परेशान ना हो। अभी तो वो खुश, मतलब आपने जैसे लिखा माशाल्लाह सेहतमंद हैं, सब कुछ है, तो वो इन्जॉय करें, ये टाइम इन्जॉय करें, उनके साथ हंसें, उनकी हंसी रिकॉर्ड करें। एक चीज़ वो थी कि मैंने कोट पढ़ा था, रिकॉर्ड योर पेरेंट्स लाफ्टर। ये लाइन पढ़ के ना मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि फिर इट मेक्स यू थिंक कि ये लाफ्टर आज है फिर कल शायद ना हो। तो मेक मोमेंट्स, मेक मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज विद देम। परेशान ना हो, आगे की आगे देखी जाएगी। रही बात आपके रिश्ते की, यू फील लोनली, अगेन दिस इज़ नथिंग बट नेचुरल। इंसान को पार्टनर चाहिए होता है, अल्लाह ने हमें जोड़ों में बनाया है। लोग जितना बोलें कि नहीं मैं तो खामोश तबीयत का हूँ या अलग पसंद हूँ, आई जस्ट वांट टू बी ऑन माई ओन, नहीं होता। इंसान को चाहिए होता है एक कंपेनियन। बने ही हम इसमें हैं यार, हम लोनली टून्स नहीं बने, लूनी टून्स नहीं है ज़िंदगी। साथ रहने की है, साथ चेरिश करने की है, एंजॉय करने की है। तो ये तो इट्स नथिंग बट नेचुरल, और ये होता है। ये आपको अभी नहीं तो बाद में रियलाइज़ इंसान को हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं नहीं मैं रह लूँगा, नहीं रहा जाता अकेला, बहुत मुश्किल होता है। तो इस बारे में देखें, फ़िक्रमंद ठीक है ज़रूर हो एक हद तक कि हाँ ये ज़िंदगी, ये एक टास्क रह गई है, हो जाए तो अच्छी है। फिर जाहिर है, जैसे मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ, कुछ लोगों को वो एक टाइम बॉम्ब वाली सिचुएशन होती है बायोलॉजिकल क्लॉक को लेके। सम पीपल रियली लाइक टू बेयर चिल्ड्रन, सबकी अपने अपने प्रायोरिटीज़ होती हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें वहाँ से आ रही होती हैं। और लेकिन जो रही बात सोसाइटी वाली बात ना यार, इसको प्लीज़ बंद कर दें ये चैप्टर। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, नॉट जस्ट वो लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई, जो लड़के हैं जो कुछ भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, अब भाई इनकी सुनना छोड़ दो।
कसम से इनके पास कुछ करने को होता ना, ये वो काम कर रहे होते हैं, इनके पास ये टाइम ही नहीं होता सोचने का कि हमाद क्या कर रहा है। ठीक है, एक होती है फ़िक्र, जैसे मुझे अपने भांजे की फ़िक्र होती है कि वो ज़िंदगी में क्या कर रहा है और वो क्या करेगा और उसको क्या करना चाहिए। एक होती है फ़रागत, यार ये क्या कर रहा है आजकल, तो ये आती ही फारिग दिमाग के अंदर है। तो अगर कोई मेरी तरह हाइपर वर्कaholic हो, जिसके कोई ज़िंदगी में गोल्स हों, अचीवमेंट्स करनी हो, लेगेसी छोड़नी हो, आज यकुम मई है, लेबर डे में आपका भाई लेबर कर रहा है, ठीक है, करवा भी रहा हूँ, लेकिन उनको छुट्टी आगे उनकी बनी हुई है, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग तो इनकी भी छुट्टियाँ ही हैं। तो मुझे तो टाइम ही नहीं है भाई ये सोचने का कि मेरा फलाना कज़न क्या कर रहा है, और अच्छा वो इंग्लैंड वाला क्या कर रहा है, वो आजकल क्या कर रहा है, मेरे पास टाइम ही नहीं है सोचने का। तो बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ वैल्यू, हाई वैल्यू आदमी हूँ मैं, तो मैं अपना टाइम वैल्यू करता हूँ, अपनी ज़िंदगी वैल्यू करता हूँ, अपनी एनर्जी, अपनी कैलोरीज़ को वैल्यू करता हूँ। तो मैं किसी से नफ़रत में या किसी की जेब में झांक के ये कितना कमा रहा है, मैं उस पर अपने कैलोरीज देखो, एनर्जीज है ना, लिमिटेड एनर्जी है दुनिया में, इनफाइनाइट तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो मैंने यार उनको सही जगह लगाना है, तो मैंने इधर उधर की गॉसिपिंग में ये क्या कर रहा है, उसकी जेब में क्या चल रहा है, कर रहा है, तो चूँकि अगर मैं लो वैल्यू इंसान होता तो मैं यही कर रहा होता, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, अच्छा आजकल ये इसका इंस्टाग्राम पे दुखी चल रही है, अच्छा कौन चल रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है, टाइम ही नहीं है मेरे पास। आई फॉलो सो मेनी पीपल बट आई डोंट फॉलो एट द सेम टाइम, एज इन के लाइक मुझे उनकी ज़िंदगी की क्रोनोलॉजी समझ नहीं आ रही थी, ना ही मैं समझना चाह रहा था। हाँ ठीक है, दोस्त हैं, ठीक है, चल रहे हैं, चिल विल कर रहे हैं। सो इस तरह के ताने हैं जो ना जितने आप सुन रहे हैं, मैं आपको बारहा ये बात कहता हूँ, लोग क्या कहेंगे कि लाइन जिस दिन आपने क्रॉस कर ली, आपकी ज़िंदगी में इतना सुकून है, इतना प्लेजर है, टेंशन ही कोई नहीं है। अरे कोई टेंशन ही नहीं है, कसम खुदा की, इतने मज़े हैं मैं आपको बता नहीं सकता। तो जिस दिन आप लोगों ने ये लाइन क्रॉस कर ली ना, मुझे भी होता था, फील करता था मैं, अगेन ईजियर सेड देन डन, मगर एक दिन मैंने तहैया कर लिया अपने आप से, मैंने ये सोचना ही नहीं है, ज़ीरो, ख़त्म, लॉक कर दी, उन्हें जिप लगा दी, कोई आ ही नहीं सकता। तो ये मेरी डोमेन है और मेरा दिमाग सिर्फ मैं ही ख़राब कर सकता हूँ और मैं ही करता हूँ, मैं किसी और को अलाउ ही नहीं करता। सॉरी, इट्स नॉट योर डोमेन। तो आप ये ज़िंदगी से निकाल लें, लोग क्या कहेंगे, आंटी ने ये कह दिया, फुप्पो ने ये कह दिया, मोमेंटेरली बुरा लगता है यार, ज़ाहिर आपके लव्ड वंस हैं, वो आपके बारे में ऐसी बात करें, बुरा तो लगता है, मगर फिर आप ये सोच के छोड़ दो कि यार ये औरत जो है ये 60 साल की है, माशाल्लाह इन्होंने एजुकेशन में मास्टर्स भी किया हुआ है, अच्छे दौर के पाकिस्तान में, और अच्छी सोसाइटी में रहती हैं, एक्सपोजर भी है, ट्रैवल भी किया हुआ है। इफ़ आफ्टर ऑल ऑफ दैट अगर ये रिजल्ट है और ये कंक्लूजन है, तो आई फील सॉरी फॉर हर। अरे तुम क्या मेरे लिए सॉरी, आए रिश्ता नहीं हुआ है, मोटी हो गई, अरे आई फील सॉरी फॉर यू, ये रिजल्ट निकला है 60 साल बाद। आपको पता है मैं ट्रैफिक से कितना चढ़ता हूँ, राइट, रॉन्ग वे आ रहे होते हैं। कभी कोई बूढ़ा आदमी आता है ना, तो मैं चिढ़ता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ यार इसने पूरी ज़िंदगी से ये सीखा है कि मैं रॉन्ग बाइक लेके जाऊँगा। तो ऐसी ज़िंदगी पे ही लानत है यार, अगर आपने सही और गलत की तमीज़ ही नहीं सीखी, क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का। तो अफसोस होता है। तो इससे पहले कि वो अफसोस करे, आप अफसोस करें उन पर कि यार ये सोच पाई इन्होंने, या इनके पास इतना वेला टाइम है कि इनको मेरी माँ को बताने की टेंशन है कि अच्छा उस पहली की छोटी की क्यों कर दी, इसकी क्यों कर दी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुद कुछ करने को नहीं है। सेक्सलेस लाइफ में वो जीते हैं, मैरिजेस में वो जीते हैं, वैसी अपनी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन डिस्प्लेस करते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ डिस्प्लेस करते हैं। चाहे मैं इनसिक्योर हूँ, ये कैसे खुश है, इसके अंदर भी मैं बीज डालूँ, अब हम दोनों एक लेवल पे हैं। टांग खींचना यही तो होता है, टांग खींच के अपने लेवल पे लाना। सो लोगों की तो आप फिक्र करना छोड़ दें। रही बात ये कि अपना, आपने जैसे कि बोला यू नॉट इनटू डेटिंग दिस एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। अरेंज मैरिजेस के एवेन्यूज़ आर ऑलवेज देयर। टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू पीपल कि उनकी नज़र में कोई हो, रिकमेंडेशंस, रेफरल्स, मगर अगेन इट्स ऑलवेज रिस्की, वो तो आपने खुद ही देखना है। बट पुट योरसेल्फ आउट देयर as much as you can, and it's not from the standpoint of desperation or anything, it's just कि यार मुझे एक चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है, राइट। तो अफर्मेटिव एक्शन तो आपने ही लेना है ना भाई, अब मुझे एक चीज़ चाहिए लेकिन मैं उसके लिए निकलना भी कहीं नहीं है, तो फिर तो बंदा डिप्रेस ही होगा ना। तो लाइक टेक सम एक्शन, टेक सम चार्ज। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, आप पार्टनर ढूंढ रही हैं, आप कोई लिव इन सिचुएशन वाला बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ रही, आप एक रिस्पेक्टेबल रिश्ते में जाने के लिए एक हस्बैंड तलाश कर रही हैं, राइट।
और इसमें भी कोई मायूब बात नहीं कि अगर कोई खातून रिश्ता भेजे, हिस्टोरिकली भी ये होता रहा है। तो ये हमारे कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने रिलीजन के अंश में ढांप दिया है, हमारे कल्चरल मसले हैं। तो आपको कोई पसंद हो आप भेजें रिक्वेस्ट, और बिल्कुल ना शर्माएं। अगेन एज लॉन्ग एज आपकी नीयत साफ़ है, ख़राब नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। बट परेशान ना हो, अल्लाह ने तो करना ही करना है, इंसान ने भी थोड़ा एक्शन करना है। तो थोड़ा सा आप जैसा आपको सही लगे कि आप इस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। और पेरेंट्स को परेशान होने ना दें, उनकी काउंसलिंग करें। ज़ाहिर है वो जिस जनरेशन के से हैं ना, उनको अवेयरनेस वो वाली नहीं है और वो बातों में जल्दी आ जाते हैं, और दूसरों की बड़ी टेंशन होती है, ख़ानदान की, अपने नाम की। हम राजपूत हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। डेड पीपल्स बैगेज लेके फिरते हैं वो, राइट? ज़ात पात, दिस दैट, आई डोंट केयर भाई, मैं खुद क्या हूँ, दैट्स इम्पोर्टेंट। जी हम तो फलाने हैं। अरे तुमने ठीक है हो गए, दुरानीज हो गए, तुमने अफ़गानिस्तान पे कब्जा, वो तुम्हारे बाप दादों ने किया था, तुमने क्या किया है भाई ज़िंदगी में? आज की बात करो, पास्ट में नहीं रहो। तो पास्ट लेगेसीज में रहते हैं हम। तो टेंशन ना लें, अल्लाह से दुआ है आपके लिए। अगेन लाइक आई सेड शुरू में कि इसके बाद आएंगे 2-4 कहीं ना कहीं मैसेजेस, मगर फिर वही वाली बात है कि मेरे लिए बड़ा मसला होता है। आप भी ज़रा, जो लोग सुन रहे हैं, ज़रा कमेंट में बताइएगा कि मेरे फेयर्स क्या गलत हैं। स्कॉलरशिप की बात हो गई या रिश्तों की बात हो गई, या वो लेजिटिमाइज है। ठीक है, ख्याल रखिएगा। ऑलराइट जी, तो ये थे आज की एपिसोड। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज ईमेल्स। और अपने ईमेल्स आप भेज सकते हैं मुझे, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ व्यूअर्स हु आर नॉट आवर सब्सक्राइबर्स, सैडली। एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोबारा। लेबर डे है, ज़्यादा लेबर नहीं करा सकता, इसलिए आज 2 क्वेश्चंस किए हैं। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड शूट करके फिर जाएंगे हम अमेरिका, ताकि पीछे ये सिलसिला जारी हो सारी रहे। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।